Hi, I am Dr. Shamustri Shur, Assistant Professor and Head, Department of Education, Siddhinath Mahavidyalaya. Today I am going to speak about 152nd birth anniversary of Mahatma Gandhi and 118th birth anniversary of Lal Bahadur Shastri Ji. Please anyone tell me if I am audible. Please message me if I am audible. Okay, I am starting my program. This program is divided into two parts. In the first part, I will be starting with Lal Bahadur Shastri Ji, and after that, in the second part, I will start about Mahatma Gandhi Ji. So, I am starting my speech about Lal Bahadur Shastri Ji. Lal Bahadur Shastri Ji was born on October 2, 1904 in Mughal Sarai, India, and died in January 11th, 1966 at Uzbekistan, USSR. He was the Indian statesman and Prime Minister of India in the year 1964 to 1966 after Jawaharlal Nehru. So, he was the second Prime Minister of India. A member of Mahatma Gandhi's non-cooperation movement against British government in India, Gandhiji was a member of Lal Bahadur Shastri was a member of Mahatma Gandhi's non-cooperation movement against British government in India. He was imprisoned for a short time in 1921. Upon release, he studied in Kashi Vidyapith, a nationalist university, where he graduated with the title of Shastri, that is, learned in scriptures. He then returned to politics as a follower of Gandhi, was imprisoned several more times and attained influential positions in the Congress party of the state of the United Provinces, now Uttar Pradesh state. Shastri was elected to the legislature of the United Province in 1937 and 1946. After Indian independence, Shastri gained experience as Minister for Home Affairs and Transport in Uttar Pradesh. He was elected to the Central Indian Legislature in 1952 and became Union Minister for Railways and Transport. He gained a reputation as a skillful mediator after his appointment to the influential post of Minister for Home Affairs mediator in 1961. 3 years later, on Jawaharlal Nehru's illness, Shastri was appointed minister without portfolio, and after Nehru's death, he became Prime Minister in June 1964. Shastri was criticized for failing to deal effectively with India's economic problems, but he won great popularity for his firmness on the outbreak of hostilities with neighboring Pakistan in 1965 over the disputed Kashmir region. He died for heart attack after signing a no-war agreement with Prince Ayub Khan of Pakistan and was succeeded as Prime Minister by Indira Gandhi, Nehru's daughter. Many things to say about Lal Bahadur Shastri, but today I will focus on Mahatma Gandhi ji. So I just don't want to extend my lecture on Lal Bahadur Shastri. So I am starting my lecture on
Mahatma Gandhi. In this respect, I want to say something. What I am going to share, some factors I am going to share with you. That is written by Dr. Ravindra Kumar, who is the ex-vice chancellor of Meerut University, and also he is the editor-in-chief of an international journal of philosophy, peace, education, culture, and civilization. So, I want to read out some of his writing about Gandhi. Because he is a milestone in the literature of Gandhi, and he has written many books on Gandhi and peace movement, and he is still now he is continuing his study and his struggle and his movement on peace movement about Gandhi and his about his peace movement. So I am very lucky to read out some of his papers on Gandhi. Now I am starting. First, some untold areas I want to focus, like Gandhi and Khadi, the man and fabric to weave in Swarajya. While Khadi is good for the poor as an honorable occupation for earning bread, it has an additional and far greater value as an instrument of winning Swarajya through non-violence means. That is this quotation by Mahatma Gandhi himself. Mahatma Gandhi's above mentioned statement appearing in Horizon on September 29, 1946 depicts the importance of Indian fabric khadi and his philosophy in the root of it, revealing to a large extent his vision of village reconstruction, rebuilding Hindustan on the basis of her hand-spun fabric heritage, pioneering an era of self-reliance, development and prosperity. Views expressed by Mahatma Gandhi on another occasion appeared in Constructive Program, Its Meaning and Place, 1948. Besides reflecting the magnitude of India's 1,000 years old tradition of hand-woven cloth, that is khadi, as a symbol of unity, instrumental in restoring the lost dignity of Indians through the philosophy related to it. Through this, one can well comprehend the soul spirit of Khadi Darshan related to human equality, the most important aspects of freedom, justice, and rights are necessarily associated thereof. This eventually unveils Gandhiji's all-timely and unique idea of achieving Swarajya through constructive works, paving the way to Sarvodaya, which is finally dedicated to humanism, rise and prosperity of everyone without any kind of discrimination, be it on the basis of caste, class, color, community, social or religious, gender or economic disparity. To quote from the views of Mahatma himself, Khadi to me is the symbol of unity of Indian humanity, of its economic freedom and equality, and therefore ultimately it is the livery of India's freedom, in which decentralization of the production and distribution of necessary of life remain just and fair. Khadi refers to national dignity of hand-spun, hand-woven clothes. In simple terms, it is also the cloth manufactured in the country by the countrymen themselves with their own raw material. Clothes is one of the 5 basic human needs.
its significance in man's life is well known to all of us. Having this very importance of man's life in the center, Mahatma Gandhi revolutionized a large-scale production of khadi by common men. Villagers, an essential part of the national liberation movement. He called on the compatriots at the launch of non-cooperation and Swadeshi movement in 1920 to boycott all foreign manufactured or labeled goods, when more especially clothes manufactured in mills under mill owners' monopoly and being sold at high cost by the British Raj to Indians, sucking on their dignity and prosperity. The basic spirit in the root of Mahatma's call remained in the fact that he desired common men of India, a country of village and farmers, to become the part and parcel of the mainstream of the nation, creating large-scale awakening among people and making appropriate use of whole of their labor. Thus, through their self-sufficiency to ascertain their place of becoming the backbone of the national economy. Kishans and their associates, almost all those living in villages, are to a large extent in a way or the other connected to each other. Their mutual dependency to a great extent remains intact. Mahatma Gandhi therefore wished this village power by real strength of the nation through its self-sufficiency playing vital role in the economy to contribute towards Sarvodaya leading to Swarajya. Hence, the idea of khadi is not only confined to a hand-spun, hand-woven cloth, but it is undoubtedly an effective and most practical thought, a philosophy dedicated to Sarvodaya, the welfare of all, paving the way to Swarajya, having village-centered economy as a nucleus. It is the medium of all welfaristic fundamental change fairly conducive to the resurrection of the real Hindustan, a country of villages on the basis of available national resources, fair, full and positive use of manpower and large-scale joint endeavours of countrymen as per the demand of the time. Many things to say about khadi movement, but I don't want to tell much on khadi because there are many aspects of Gandhiji which I also want to focus. So I am moving towards another aspect. Now I will be reading loudly the humanism in Gandhian thought. This is also written by Ravindra Kumar ji. So we are all thankful to Dr. Ravindra Kumar, who is the master in this subject, and really we are very much grateful to him that we came to know many unknown thoughts and unknown facts about Gandhiji. Okay, so I am starting. If you would like to listen in Hindi, I can try to read out, but I am not sure how much I can continue in Hindi because I am not very much fluent in Hindi. But for your easy, I can start in Hindi. If I face any problem, I can continue in English. डॉक्टर रविंद्र कुमार ने लिखा है गांधी विचार में मानवतावाद। सच्चा मानवतावाद संपूर्ण मनुष्य जाति को
अपनी परिधि में समेटता है। सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, राजनीतिक, बौद्धिक अथवा धार्मिक सभी दृष्टिकोणों से व्याख्यायित और विश्लेषित मानवतावाद अंततः मानव समानता की वास्तविकता को सामने लाता है। प्रत्येक मनुष्य के आत्म विकास के अधिकार की सुनिश्चितता के साथ ही बृहद मानव कल्याण के लिए व्यक्ति को उसके कर्तव्यों का स्मरण कराता है। मानवतावाद एक बृहद, विशाल और सक्रिय दृष्टिकोण विचार है। ये हर प्रकार के पूर्वाग्रह से मुक्त उच्चतम नैतिकता केंद्रित है। नैतिकता स्वयं एक आदर्श मात्र ही नहीं है, ये मनुष्य के कर्तव्य पालन से जुड़ी हुई है। समाज, राष्ट्र एवं बिना भेदभाव के सहजातीय के प्रति सक्रिय रहकर उत्तरदायित्वों का निर्वहन करना नैतिकता की कसौटी है। एक व्यक्ति जो विभिन्न रूपों में समाज, राष्ट्र एवं मानवता के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करता है, उत्तरदायित्वों का निर्वहन करता है, वो निस्संदेह सदाचारी होता है, वो नैतिकता का पोषक होता है। नैतिकता मानवतावाद के मूल में है। सैद्धांतिक और व्यावहारिक दोनों रूपों से मानवतावाद नैतिकता से जुड़ा है। मानव के उपयोग और शोषण के विपरीत उसके प्रति प्रेम, सक्रिय सद्भाव, जनसेवा एवं सहयोग जो नैतिकता से जुड़े पहलू है, मानवतावाद के निर्माता और पोषक है। मानवतावाद एक अति प्राचीन कालीन अवधारणा है। भारत में मानवतावाद का सिद्धांत मानव एकता, बृहद मानव कल्याण तथा समानता के विशेष दृष्टिकोण से वेदों में विद्यमान है। ऋग्वेद सहित अन्य वेदों, चतुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद में मानव की दिव्यता, क्षमता और नित्य नूतनता के आह्वान को अनुरूप सत्कर्म करते हुए जीवन पथ पर निरंतर आगे बढ़ने की अपेक्षा है। मानवीय समानता और स्वतंत्रता की सुनिश्चितता के साथ अपने स्वयं के द्वारा चयनित मार्ग से उपलब्धि प्राप्ति का व्यक्ति को अधिकार है। इसी के साथ मानव के मध्य सहयोग, सौहार्द तथा समन्वय की स्थापना द्वारा विशेषकर वैचारिक भिन्नताओं की स्थिति में दृष्टिकोण सामंजस्य के बल पर बृहद कल्याण व्यक्तिगत से सार्वभौमिक स्तर तक प्रगति हेतु मनुष्य का आह्वान है। संगच्छध संवदध वो मनांसि जातनं देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। समानो मंत्रो समीति समानी समानो मन सहचित्तवेशं समान मंत्रमभि मंत्रये वो समानेन वो हविषा जुहोमि। ये ऋग्वेद से है। ये प्राथमिकता से सनातन धर्मी ऋषियों, महर्षियों एवं तथागत गौतम बुद्ध की धनी वाणी से श्रेष्ठत्व निर्गत हुआ है। गौतम बुद्ध ने प्रत्येक जन का आह्वान करते हुए कहा कि मनुष्य स्वयं अपना स्वामी है, कोई अन्य उसका स्वामी नहीं हो सकता। प्रत्येक व्यक्ति स्वयं का दीपक बनने का अधिकारी है। उसे स्वयं का दीपक बनना चाहिए तथा स्व उत्थान के साथ ही अनेक
के कल्याण का माध्यम भी सिद्ध होना चाहिए। एक अतिश्रेष्ठ मानवीय अवधारणा के रूप में ये आह्वान निश्चित रूप से मनुष्य के स्वाभाविक गौरव को प्रकट करता है। मानवीय क्षमता के बल पर सकारात्मक और स्वजातियों के बृहद सहयोग द्वारा कल्याणकारी समाज निर्माण की दिशा में आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करता है। तीर्थंकर महावीर आदि शंकराचार्य भक्तिकाल के संतों महात्माओं और समकालीन आधुनिक युग के महापुरुषों के संदेशों से भी श्रेष्ठता प्रकट है। यही नहीं, एशिया के अन्य भागों के साथ ही पश्चिम के अग्रणीय सामाजिक धार्मिक दर्शनों अनेकानेक महापुरुष के संदेशों में भी मानवता भलीभांति प्रकट होता है। धर्म दर्शनों के साथ ही जराथुस्ट्र व सुकरात से लेकर लियो टॉल्स्टॉय तक अनेक दार्शनिकों के विचारों से भी ये सामने आता है। जराथुस्ट्र ने एक सर्वोच्च सार्वभौमिक सत्ता के अस्तित्व को स्वीकारते हुए कहा कि प्रत्येक मनुष्य एक स्वाधीन स्वायत्त नैतिक विचारक है तथा वो जीवन में स्वयं के लिए मार्ग का चयन करने को स्वतंत्र है। रोमी राजनीतिज्ञों और दार्शनिक सिसोरो ने, जैसा कि हम जानते हैं, ह्यूमैनिटास शब्द प्रस्तुत किया। ये मानव को अन्य प्राणियों से पृथक करता है। मानव के पास बौद्धिक क्षमता है, ये बोल सकता है, उन नियमों का सजातियों के सहयोग तथा सामंजस्य से निर्माण कर सकता है जो सद्भावना एवं शांति को समर्पित सभ्य समाज की स्थापना में निर्णायक सिद्ध हो सकता है, जो बृहत मानव कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। मानवता की मूल भावना मानव समानता एवं बृहद मानव कल्याणार्थ मनुष्य की कटिबद्धता सर्वकालिक है। मानवतावाद के व्यवहारार्थ देश काल की परिस्थितियों, समय की मार्ग के अनुसार विचार व मार्ग परिमार्जित, परिष्कृत अथवा संशोधित हो सकते हैं और होने भी चाहिए, लेकिन मानवतावाद की मूल भावना पुनरावृत्ति की जा सकती है, अविकल है। किसी न किसी रूप में अंततः समस्त मानव जाति मानव समानता तथा मानवोत्थान मानवतावाद का मूल है। यही मानवतावाद की कसौटी भी है। ये वास्तविकता को आधुनिक काल के समस्त अग्रणीय मानवतावादी विद्वान विचारक से के आलेख्य ग्रंथों अथवा वक्तव्यों व्याख्यानों से भलो भांति जाता और समझा जा सकता है। इसी परिप्रेक्ष्य में विशेष रूप से पाश्चात्य जगत के कुछ आधुनिक विद्वानों चिंतकों के विचारों का उल्लेख मैं यहाँ करना चाहूँगा। अमेरिकी रसायन विज्ञानी, जैव विज्ञानी एवं शांति कार्यकर्ता लिंस पालिंग का मानना है, मानवतावाद संपूर्ण मनुष्य जाति की अधिकतम भलाई के लिए सेवा करते हुए आनंदानुभूति को समर्पित दर्शन है। ये वैज्ञानिक ढंग से सबकी उन्नति के उद्देश्य से नए नए वैज्ञानिक विचारों को अपनाने, व्यवहार में लाने का आह्वान है। अमेरिकी समाजवादी चिंतक कर्लिंग लाइमोंट का कथन है, मानवतावाद संसारवाद
अवधारणा को नकारने से भी आगे जाता है। इसे एक सकारात्मक विचार की आवश्यकता होती है जो स्वयं अपने सुधार के लिए प्रतिबद्धता के साथ ही संपूर्ण मानव जाति की समर्पण भावना से सेवा हेतु जीवन का मार्ग प्रशस्त कर सके। रॉय बेनेट ने द लाइट इन द हार्ट में मानवतावाद को केंद्र में रखकर ये कहा है, हम में से अधिकांश लोगों को वस्तुओं से प्रेम और सजातियों के उपयोग के स्थान पर मनुष्य से प्रेम तथा वस्तुओं का उपयोग करना सीखना चाहिए। जर्मन मूल अंग्रेजी मनोवैज्ञानिक हंस जर्गेन आइसेंक का दृढ़तापूर्वक ये मानना है कि मानवतावाद मानवीय विषयों में बुद्धि के प्रयोग हेतु प्रतिबद्धता है जो करुणा भावना रखते हुए सेवा में चालू होती है। फ्रांसीसी अभिकल्पकार फिलिप स्टार्क अच्छाई भलाई को मानवतावादी अवधारणा में संबंध करते हुए कहते हैं, हमें सुंदरता को जो एक सांस्कृतिक विचार दृष्टिकोण है अच्छाई भलाई में रूपांतरित करना है, ये एक मानवीय अवधारणा है। इसी परिप्रेक्ष्य में अमेरिकी लेखक कॉर्ट वनगुट का ये वक्तव्य, जिसमें उन्होंने कहा है, मैं एक मानवतावादी हूँ, इसका एक प्रकार से अर्थ ये होता है कि मृत्यु के उपरांत पारितोषिक अथवा दंड की चिंता किए बिना मैंने सभ्यतापूर्वक व्यवहार करने का प्रयास किया है, विचारणीय है। स्पष्ट है कि मानवतावाद एक अति प्राचीन एवं मानव समानता, प्रत्येक व्यक्ति को समान उन्नति के अधिकार को सुनिश्चितता को समर्पित विचार है। मनुष्यों के आत्म विकास के साथ ही बृहत मानव कल्याण इसकी मूल भावना है। ये सहजातियों के कल्याण, प्रगति तथा संपन्नता के लिए मानव का कर्तव्य के रूप में कार्य करने का आह्वान करता है। यही वास्तव में मानवतावाद का सत्यमय स्वरूप हो सकता है। इसके विपरीत किसी भी दृष्टिकोण, व्याख्या या विश्लेषण से मानवतावाद की मूल भावना को प्रकट नहीं किया जा सकता, उद्देश्यों और अपेक्षा को पूर्ण नहीं किया जा सकता। महात्मा गांधी विश्वभर में एक प्रमुख और श्रेष्ठ मानवतावादी के रूप में जाने जाते हैं। अपने विचारों एवं कार्यों की समालोचनाओं के बाद भी वे अपने समकालीन तथा उत्तरकालीन अनेक मानवतावादियों के प्रेरक और मार्गदर्शक स्वीकार किए जाते हैं। गांधी विचार से परिचित, उनके विचारों या कार्यों से थोड़ा बहुत परिचय रखने वाले भी इस वास्तविकता से अनभिज्ञ नहीं है। महात्मा गांधी एक प्रमुख एवं श्रेष्ठ मानवतावादी के रूप में क्यों जाने जाते हैं? क्या कारण है कि ये देश की सीमाओं से भी परे संसार भर के अनेक समकालीन उत्तरकालीन मानवतावादियों के प्रेरणा स्रोत बने? वर्तमान पीढ़ी को ये जानना चाहिए, युवा वर्गों को ये जानने का अधिकार है। गांधी जी के एक अग्रणी मानवतावादी होने का मेरी दृष्टि से प्रमुख कारण उनके द्वारा व्यक्ति को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपनी आत्मनिर्भरता का अधिकारी घोषित करना है। इस हेतु किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना प्रत्येक मानव, स्त्री और पुरुष की समानता पर गांधी जी ने भरपूर बल दिया।
न केवल वैचारिक दृष्टिकोण से ही उन्होंने इस पक्ष पर बल दिया, अपितु इस दिशा में हर संभव कार्य भी उन्होंने किया। गांधी विचार की मानव समानता, प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता, स्वयं विकास के उसके अधिकार और वंचित स्थिति में न्याय प्राप्ति की सुचिंतितता से आवश्यक रूप से जुड़ी है। गांधी जी का चूंकि परम सत्ता ईश्वर में, जो स्वयं परम सत्ता है, सर्वोच्च नैतिकता के मूल स्रोत तथा सर्वज सृजन भी है, अटूट विश्वास था। अतः उन्होंने सर्वप्रथम मानव समानता के प्राकृतिक अधिकार की बात परमात्मा के आधार पर ही की। 24 अगस्त 1946 ईस्वी को हरिजन में उन्होंने लिखा कि हमने से प्रत्येक बिना किसी भेदभाव के समान रूप से स्वयं ईश्वर की प्रतिमा है। परमात्मा ने मनुष्यों को अपने प्रतिरूप में बनाया है। ईश्वरीय सृष्टि के साथ ही स्थापित व्यवस्था में मनुष्यों की सर्वोच्च स्थिति को स्वीकार करते हुए व्यक्ति की स्वायत्तता और एक स्वायत्त प्राणी के रूप में उसकी स्वतंत्रता के संबंध में महात्मा गांधी का स्पष्ट और दृढ़तापूर्वक मानना था। प्रत्येक स्त्री अथवा पुरुष कायिक दृष्टि से दुर्बल होने के बावजूद स्वयं अपने आत्मसम्मान एवं स्वतंत्रता का स्वामी संरक्षक है। ये बोला गया है हिंदुस्तान स्टैंडर्ड, कलकत्ता, 6 अगस्त 1944 में। गांधी जी ने ये भी कहा है, मैंने ये खोज की है कि अपने द्वारा प्रस्तुत की गई व्यवस्था में मनुष्य श्रेष्ठ सर्वोच्च है। ये बोला गया है महात्मा गांधी आइडियाज, CF एंड्रूज, जॉर्ज एलन, लंदन 1929। उन्नति का अवसरों सहित जीवन के सभी क्षेत्र में समानता मनुष्य के आत्मसम्मान और उसकी स्वतंत्रता की सुनिश्चितता का आधार है। इसीलिए महात्मा गांधी ने सजातीय समानता की वास्तविकता को मानवीय मानसिकता में स्थिर करने का आह्वान किया। मस्तिष्क और हृदय से मानव समानता को स्वीकार करना एवं सजातियों के साथ परस्पर व्यवहारों में इसे अंगीकार करना वास्तव में सरल नहीं है। ये संदर्भ एक सुचुनौती भरा कार्य है। अतः महात्मा गांधी ने मानव समानता की सत्यता के प्रत्येक मनुष्य द्वारा दृढ़ता पूर्वक हृदय से स्वीकारने की आशा की तथा परस्पर व्यवहारों में प्राथमिकता से एक परम नैतिक कर्तव्य के रूप में समानता के स्वाभाविक प्राकृतिक अधिकार को अंगीकार कर जीवन में आगे बढ़ने की अपेक्षा की। 4 जून 1931 ईस्वी को यंग इंडिया में जाति को केंद्र में रखकर जो विचार उन्होंने प्रकट किए, उन्हें इसी परिप्रेक्ष्य में देखना और समझना चाहिए। महात्मा गांधी में लिखा, हम सब पूर्णतः समान है, लेकिन समानता आत्मा की है, काया की नहीं। इसीलिए बात मानसिक अवस्था की है। समानता का विचार करने और उसे बलपूर्वक प्रकट करने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि संसार में उच्च निम्नों के भारी भेद दिखाई देते हैं। इस बाहर से दिखाई देने वाले उच्च निम्नों में से हम समानता उत्पन्न करनी है। कोई भी मनुष्य अपने को दूसरे से ऊंचा मानता है तो वो ईश्वर एवं मनुष्य दोनों का सामने पाप करता है। महात्मा गांधी के लिए अवसरों में समानता की सुनिश्चितता विशेष रूप से मानवता को आदर्श की व्यवहार में
परिणति